Good morning, student. Good morning, sir. Okay. Good morning, sir. Yes. Okay. Thank you. What we discussed in last lecture? What we discussed in lecture 6. Today is lecture 7. So tell me about the lecture 6. Anybody? No idea? Oh my God. सर एग्जाम्पल्स किए थे. लेकिन किस चीज के एग्जाम्पल्स किए थे ऐसा? नॉर्मल टू द सरफेस वाले. Normal to the surface. Okay. Nischay? Yes. हाँ सर वही नॉर्मल टू द सरफेस. Okay. So in last lecture we have discussed the directional derivative. Okay. And we done some examples for the directional derivative. Yes or no? Yes. Okay, so let me confirm. We already done these 3 examples. Okay, डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए किया था कि नहीं? Yes, sir. है ना? Okay, and can we discuss orthogonal? निश्चल ऐसा? नो रमेश? नो सर. No? Okay, so we start with this one in today's session. Okay, so what do you mean by the orthogonal surfaces? Okay, we are talking about the orthogonal surfaces. So how we can define the orthogonal surfaces? The two surfaces are said to be orthogonal orthogonal if and only corresponding tangent vectors are perpendicular to point P, and if and only if corresponding normal vectors are perpendicular at point P. That means if two surfaces, for example S1 and S2, are orthogonal if and only if, number one, their tangent, means if I say that T1 is the tangent for S1 and T2 is the tangent for S2, then both are the perpendicular. That means perpendicular to T1, perpendicular to T2. And you can say that if and only if normal, that means N1 bar is perpendicular to N2 bar, then you can say that both the surfaces are orthogonal. Means दोनों में से कोई एक, दिस इज द नंबर 1 कंडीशन, दिस इज नंबर 2, बट दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई करना चाहिए. मीन्स टेंजेंट के साथ जाना चाहते हो तो टेंजेंट के साथ, नॉर्मल के साथ जाना चाहते हो तो नॉर्मल के साथ. सो इफ यू से दैट both the surfaces are orthogonal if and only means if T1 perpendicular to T2 और N1 perpendicular to N2. एंड इसका मीनिंग ये होता है कि T1 बार इंटू T2 बार इज इक्वल टू 0, और इसका मीनिंग होता है N1 बार इंटू N2 बार इज इक्वल टू 0. मीन्स यू कैन यूज एनी ऑफ दीज टू एक्सप्रेशंस. ओके एवरीबडी? यस सर. Yes, sir. ओके, प्रीत, पलक, करीना, जैनिल, विजय, निसर्ग. Yes, sir. Yes, sir. ओके, नो डाउट ना? एनी डाउट स्टूडेंट? No, sir. Okay, then we go for the example for the orthogonal. So find the value of constant a and constant b so that the surface ax square minus zby is equal to a plus 2x will be orthogonal to the surface 4x square y plus z square is equal to 4 at point 1 minus 1 2. So this is surface number 1, that means S1. दिस इज सरफेस नंबर 2 S2. ना ये दोनों ए एंड बी क्या लेंगे तो ये ऑर्थोगोनल होगा, इस आपको वेरीफाई करना है. तो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. अंडरस्टैंड एवरीबॉडी स्टेटमेंट? डू यू Yes, अंडरस्टैंड? sir.
Right. Yes. Okay. Only one student understand the statement. What about others? Yes, sir, understand. Yeah. So, Yes, I understood. okay. So this is your S1 and this is your S2. So define that first. So we are given two surfaces. First one is f of x y z is equal to ax square minus z by minus a plus 2x. Okay. So if you open this, then you have ax square minus z by minus ax minus 2x. Okay, this is your f. And say second surface as g. So g of x y z is equal to 4x square y plus z cube minus 4. एंड पॉइंट जो भी पॉइंट दिया है दोनों सरफेस का ऑर्थोगोनल कौन से पॉइंट के लिए चेक करना है 1 माइनस 1 2 के लिए. सो पी ऑफ 1 माइनस 1 2. सो दिस इज योर स्टेप नंबर 1. ना स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 क्या करना है? ओके, तो स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? तो अब ये दोनों जो है वो ऑर्थोगोनल है, ऐसा हम सपोज कर सकते हैं कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. तब जाके हमको ए एंड बी मिलेंगे ना, अदरवाइज वी कैन नॉट फाइंड ए एंड बी. अब हम ऐसा सपोज करते हैं कि बोथ एफ एंड जी बोथ आर दी ऑर्थोगोनल वेक्टर, सॉरी ऑर्थोगोनल सरफेस, नॉट वेक्टर, ऑर्थोगोनल सरफेस. सो ऑर्थोगोनल सरफेस होने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है. वी कैन गो विद द टेंजेंट और वी कैन गो विद द नॉर्मल. बट विच वन इज बेटर फॉर अस? यू हैव टू थिंक अबाउट इट. तो यहाँ पे देखो जो सरफेस है, तो सरफेस में से हम टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली. एनी आइडिया अबाउट इट? No, sir. नो. ओके, इफ यू हैव द पोजीशन वेक्टर देन यू कैन फाइंड आउट द टेंजेंट डायरेक्टली इन आवर सिलेबस. ओके, उसके अलावा तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ओके सरफेस का टेंजेंट फाइंड करने के लिए, लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से यू हैव द पोजीशन वेक्टर, तो यहाँ पे वो है नहीं, तो वी गो फॉर द नॉर्मल. ओके एवरीबॉडी, मैं किससे जा रहा हूँ? नॉर्मल से जा रहा हूँ. अंडरस्टैंड वाई? पता चला मैंने क्यों नॉर्मल से लिया? एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ नॉर्मल फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हाउ वी कैन फाइंड द नॉर्मल टू द सरफेस? Gradient. ग्रेडियंट. यस, वेरी गुड. सो इसका भी ग्रेडियंट फाइंड करना पड़ेगा, इसका भी ग्रेडियंट फाइंड करना पड़ेगा एट पॉइंट जो भी दिया है. देखो, सो आई से n1 बार इज इक्वल टू ग्रेडियंट f. सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर द ग्रेडियंट. डेल f अपॉन डेल x i प्लस डेल f अपॉन डेल y j प्लस डेल f अपॉन डेल z k. नाउ टेल मी द फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x. व्हाट इज इट? चलो, फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा f का विद रिस्पेक्ट टू x? ये रहा का f. चलो बताओ क्या होना चाहिए? सो ए 2x स्क्वायर करके 2x minus a minus 2. a माइनस. ओके, सो दिस इज योर डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू आई कैप प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या होगा? minus bz माइनस जेड बी या फिर माइनस बी जेड जे कैप प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड minus by minus by k. Okay, so this is our n1 bar in general. Now we want to find the n1 bar at point कौन सा है? 1 minus 1 2. So you have to simply substitute the x as 1, y as minus 1 and z as 2. So if you substitute here, then you will get 2a minus 2 into i cap माइनस मैंने बाहर ले लिया b इंटू जेड, दैट मीन्स 2b j माइनस b इंटू y लेकिन माइनस 1, सो माइनस माइनस प्लस b k. ओके, सो दिस इज योर n1 बार. सो n1 बार मुझे मिल गया. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2a माइनस a हो जाएगा a. सो a माइनस 2a आई कैप माइनस 2b j कैप प्लस b k. Okay, everybody, any doubt, any question? no, sir. Okay, so this is your n1 bar, जो भी हमको मिला वो n1 bar. Similarly, we can find the n2 bar for the g. तो g के लिए मैं फिर से वही का वही कॉन्सेप्ट. सो n2 bar is equal to del g. So del g by del x I plus del g by del y j plus del g by del z k.
सो यहाँ पे g मैंने रखा हुआ है, सो 4x स्क्वायर वाई प्लस जेड क्यूब माइनस 4 डेल बाई डेल वाई ऑफ 4x स्क्वायर वाई प्लस जेड क्यूब माइनस 4 इंटू जी कैप प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ 4x स्क्वायर वाई प्लस जेड क्यूब माइनस 4 इंटू के कैप. ओके, सो नाउ फाइंड आउट द फर्स्ट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8xy इंटू वाई कैप प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई का 1, सो 4x स्क्वायर जे कैप प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3z स्क्वायर के कैप. ये सुनो, Yes, sir. सिर्फ निश्चल ही है ये क्लास में, है बाकी सब हो? मुझे एक एक को पूछना पड़ेगा, फिर भाग जाते हो आप लोग उससे अलावा Yes, ऐसे. sir. यस, ओके. Okay, now at point 1 minus 1 2, so at point 1 minus 1 2 यहाँ आप सब्सटीट्यूट करो x की जगह पे 1 and y की जगह पे minus 1, so you have minus 8i plus 4j plus 12k, so this is your n2 bar. Okay, n2 bar at point 1 minus 1 2. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Now we have. Yes, sir. Okay, thank you. Now we have the two n1 bar and n2 bar. Okay, so 1 minus 1 2 at point 1 minus 1 2. Now we are considering that both are the both surfaces are the normal orthogonal surface. इसे हम कंसिडर कर रहे हैं. तो ऑर्थोगोनल होने से ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए n1 बार इंटू n2 बार इज इक्वल टू 0. यस और नो? स्टूडेंट, Yes. फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मेरे दो सरफेस ऑर्थोगोनल हैं, तो बाय डेफिनेशन ऑर्थोगोनल का मीनिंग क्या होता है कि दोनों के नॉर्मल जो है, एक का n1 बार एंड दूसरे का n2 बार, वो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज जीरो होगा, तब जाके वो दोनों ऑर्थोगोनल होंगे. ऐसा हमने डेफिनेशन में देखा. तो अब ये दोनों तो है ही मेरे पास, उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो लेके आगे बढ़ सकता हो कि नहीं? तो यू कैन सी हियर, since both normal vectors are perpendicular at P, we have n1 bar into n2 bar is equal to 0. So this is my n1 bar, this is my n2 bar is equal to 0. अब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो. सो क्या होगा देखो, माइनस 8a माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 2 16 माइनस 4 इंटू 2 8b प्लस 12 इंटू b इज इक्वल टू 0. अब इफ यू rearrange all the term, then we get minus 8a plus minus 8b plus 12b, that means plus 4b. So I write down here plus 4b plus 16 is equal to 0. Now 4 is common from all the terms, so we have minus 2a plus b plus 4 is equal to 0. तो इससे तो मुझे नहीं मिला, मेरे a एंड b जो चाहिए वो मिले हमको ये एक्सप्रेशन से. No, sir. नहीं. ओके, तो यहाँ पे देखो, अब सिचुएशन को समझना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई S1, एवरीबडी लुक एट हियर. हाँ, नहीं तो नहीं पता चलेगा. दिस इज ओके, ये दिखेगा ही नहीं. दिस इज योर S1, ये भी नहीं दिख रहा है. दिस इज योर S1 एंड दिस इज योर S2. तो ये जो पॉइंट है वो हमको दिया है 1 माइनस 1 2. अब ये पॉइंट के लिए ये दोनों ऑर्थोगोनल है कि नहीं वो हम चेक कर रहे हैं. ये सुन लो स्टूडेंट. Yes. तो मेरा क्वेश्चन ये है, तो ये पॉइंट वो दोनों सरफेस पे होंगे कि नहीं, तब जाके ये Yes. कर सकते हैं ना. ओके, सो वी यूज दिस कॉन्सेप्ट. ओके, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो एफ है सरफेस, उसके ऊपर ये पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ. दैट मीन्स ये पॉइंट जो सरफेस का इक्वेशन है उसको भी सेटिस्फाई करेगा कि नहीं. Yes. उसके ऊपर है, उसका मीनिंग क्या है कि इट फॉलोज द पाथ ऑफ द सरफेस. यस और नो एवरीबडी? Yes, sir. और पाथ फॉलो करना मीन्स इक्वेशन फॉलो करना, और ये पॉइंट जो है वो इक्वेशन को फॉलो करेगा. तो इक्वेशन हमारा था ये रहा, देखो, ए एक्स स्क्वायर माइनस जेड बी वाई इज इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू एक्स. इसमें ये पॉइंट सब्सटीट्यूट करो. तो पॉइंट सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, ए इंटू 1 माइनस जेड तो मेरा 2 है, बी एज इट इज़, यहाँ पे वाई मेरा है माइनस 1 इज इक्वल टू ए तो एज इट इज़ प्लस 2
x है मेरा 1। अब इसको ओपन करते हैं, चलो तो क्या होगा, a माइनस माइनस प्लस 2b इज इक्वल टू a प्लस 2। तो ये तो दोनों साइड से a निकल जाएगा, या फिर आप किसी को एक को मूव करेंगे तो भी वो वैनिश हो जाएगा। सो 2b इज इक्वल टू 2। सो b इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमको, कितना मिला, 1. 1। ओके, ये यही चीज़ हम इसके लिए भी कर सकते थे, इसमें आप सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन उसमें से कुछ आपको कंक्लूजन नहीं मिलेगा। देखो आप रिप्लेस करके देखो, सो 4 इज इक्वल टू 4 ही मिलेगा आपको, या बढ़ जाता है, सेटिस्फाई होता है कि नहीं। देखो आप इस पॉइंट को इसमें सब्सटीट्यूट करो, -4 + 8 होगा कि नहीं, Yes. तो ये 4 इक्वल टू 4 ही मिला ना मुझे। तो इससे मुझे नया कंक्लूजन नहीं मिला, इसलिए मैंने किसको यूज़ किया, एफ को यूज़ किया। आप जी को यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यू हैव नो एनी कंक्लूजन फ्रॉम जी, सो वी गो फॉर द एफ ओनली। सो यहाँ पे देखो मैंने वही किया है। देखो नाउ सरफेस एफ एट पॉइंट 1 - 1 2 इज सेटिस्फाई करवा के मैंने बी इज इक्वल टू 1 फाइंड किया। अब बी मेरे पास है, तो कैन वी सब्सटीट्यूट दिस बी इन दिस इक्वेशन। सो -2a + b + 4 इज इक्वल टू 0। सो -2a + 1 + 4 इक्वल टू 0, और इसमें से a को सब्जेक्ट बनाएंगे। सो वी हैव a इज इक्वल टू 5/2। सो जब a इज इक्वल टू 5/2 एंड b इज इक्वल टू 1 होगा, तभी ये दोनों सरफेस ऑर्थोगोनल होगी, उसके अलावा वो ऑर्थोगोनल नहीं होंगी। सो इज इट क्लियर एवरीबॉडी? नो सर। नो सर ये हाँ, सर ये वाला समझ में नहीं आया। ये जो कौन सा वाला भी समझ में आया, बोल। ये जो पॉइंट वाला समझाया ना आप, फिर से। ओके चलो यहाँ पे देखो, सब लोग फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो इसलिए बोला था मैंने कि थोड़ा ध्यान रखना। ओके चलो, अब मेरा एक S1 है ऑर्थोगोनल टू H2, मुझे मैंने कंसिडर किया है, यस और नो? ओके, यस सर। सो उससे मुझे डेफिनेशन से ये मिला, n1 बार इंटू n2 बार इज इक्वल टू 0 से कोई एक एक्सप्रेशन मिला। कौन सा एक्सप्रेशन मिला वो भी लिख लेते हैं, चलो कौन सा, -2a + b + 4 इज इक्वल टू 0। माइनस क्या था, 2a + b + 4 क्या था, हाँ +4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक तो सबको पता चला है कि नहीं? चलो मुझे पहले कंफर्मेशन दो, इसमें भी गड़बड़ है Yes, sir. यहाँ तक? Yes, sir. ओके, एनीबडी? यस, ओके चलो, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब मेरा यहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा है, दैट मीन्स वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फ्रॉम हियर। ओके, तो मैंने क्या सोचा कि दूसरा कोई एक यूज़ करता हूँ। तो मेरा ये S1 है, ये मेरा S2 है। ओके, तो ये मेरा S1 है, ये मेरा S2 है। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड और गोइंग टू डिस्कस एट दिस पॉइंट, और वो पॉइंट कौन सा दिया था हमको, 1 - 1 2। सो ये मेरा सपोज दिस इज योर 1 - 1 2 पॉइंट। तो अब मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि मुझे ऐसा यूज़ करना है कि S1 at 1 - 1 2 एंड S2 at 1 - 1 2, मैं ये फाइंड कर सकता हूँ कि नहीं? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। निश्चल, ये दोनों फाइंड कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई पॉइंट है फॉर एग्जांपल P1, यहाँ पे कोई पॉइंट है Q1, यहाँ पे कोई पॉइंट है J1, यहाँ पे कोई पॉइंट है J2। तो हम ये सारे पॉइंट क्या ये सरफेस की तो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि नहीं एवरीबॉडी? यस सर। है ना? तो वही किया हमने, क्या किया कि S1 का 1 - 1 2 के लिए वैल्यू फाइंड किया। तो मेरा S1 मेरा था यहाँ पे, यू कैन सी जस्ट ये वाला, 4x² - zby = a + 2 × x। तो इसमें मैंने क्या किया कि ये पॉइंट जो है वो सब्सटीट्यूट किया। तो सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, चलो मिनट लो, या ये मेरा है, देखो a
f1 माइनस 1 2 फाइंड करना है। तो f ऑफ एक्स वाई जेड मेरे पास है, क्या है मेरे पास, यस 1 मिनट, ओके। तो ये f है वो मेरा ये है ए एक्स स्क्वायर माइनस 2by zby इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू एक्स। तो इसमें मैं 1 माइनस 1 2 सब्सटीट्यूट करूँगा तो क्या मिलेगा, देखो a इंटू 1 स्क्वायर माइनस जेड एज इट इज़, जेड की जगह पे 2, सॉरी नॉट एज इट इज़, जेड की जगह पे 2, सो 2 बी एज इट इज़, वाई की जगह पे माइनस 1 इक्वल टू ए की जगह पे a एज इट इज़ प्लस 2b एज इट इज़, एक्स की जगह पे 1। निश्चल, इज इट ओके? सर इधर 4 नहीं है, इधर जेड की भी वैल्यू। जेड की भी वैल्यू कहाँ 4, यहाँ पे 2 है ना, तो 2 ही ले सकते हैं। सर -2 ZBY है ना, तो माइनस जेड बी वाई, हाँ 2 कहाँ है, 2 है नहीं है 2 होते सर, नहीं है, देखो ये रहा जेड है, होते सर। ओके ओके। तो ये हो गया हमारा, हमने सब्सटीट्यूट कर दिया। सो a माइनस माइनस प्लस 2b इज इक्वल टू a प्लस 2 हो जाएगा। नाउ इफ यू मूव a राइट साइड, सो वी हैव 2b इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस a, so both will be cancel out, so we have 2b is equal to 2, so b is equal to 1, yes or no? यस सर। सो वही मैंने यूज किया है ना, कि ये वो पॉइंट वो सरफेस पे तो हो ही सकता है ना, अगर वो सरफेस पे ही नहीं है सो वी कैन नॉट डिस्कस एनीथिंग अबाउट दैट वी यूज हियर, ओके। नाउ इज इट ओके एवरीबॉडी? यस सर। अब ये b इज इक्वल टू 1 इसमें सब्सटीट्यूट करो तो क्या मिलेगा, देखो 2a प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू 0, सो वी हैव माइनस 2a प्लस 5 इक्वल टू 0, सो वी कैन फाइंड a इज इक्वल टू माइनस 5, दैट इज 5/2, ओके। सो a भी मुझे मिल गया, p भी मिल गया, मीन्स ये a इज इक्वल टू 5/2 एंड b इज इक्वल टू 1 के लिए दोनों सरफेस ऑर्थोगोनल है। Is it okay everybody now? Yes, sir. What about other? Please confirm everybody quickly. Yes, Nishchay. Yes, sir. Okay. Palak, Preet, Janil, Bijay, Nisar. Understand? Sure. Yes, sir. Okay. Karina. Understand? Yeah. Any question? Yes, sir. Understand. Okay. Okay, now we go for the next part of our unit. Okay, that is the divergence of a vector field. Okay, now gradient के लिए हमने देखा, gradient के लिए क्या क्या डिस्कस किया, you know very well. Okay, मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, किसी को याद है gradient से हमने क्या क्या पढ़ा? और gradient of phi, इससे हमने क्या क्या फाइंड किया, क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, मैंने आपको बोला था क्या कर सकते हैं, नॉर्मल टू द सरफेस, Normal of the surface. normal to the surface, and second thing is directional derivative, yes or no? Yes, sir. Okay, Yes, so sir. Yes, दोनों sir. चीज किया, लेकिन व्हाट यू मीन बाय ग्रेडियंट, तो हमारा डेल कोई एक ऑपरेटर था, उसको हमने स्केलर के ऊपर ऑपरेट किया था, और दिस इज अवर डेफिनेशन, डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड के, ओके। सो सिंपली वी ऑपरेट दिस डेल ऑन एफ, yes or no? यस सर। At that time this is your scalar point function, okay, f is your scalar point function. So what about the vector point function, अगर यहाँ पे f bar है, then what we can find here, okay, so that is the next concept and it is known as the divergence. So here you can see that the divergence of a vector field,
Okay, so if you have the v bar v1 plus v2 j plus v3 k be the differentiable vector function, then the divergence of v bar is denoted by div of v bar, means div of v bar, or del dot v bar, and defined as divergence of v bar is equal to del into v bar is equal to, अब del की definition हमको पता है, what is the definition of del? Del by del xi plus del by del yj plus del by del z k into v bar is also here v1 I plus v2 j plus v3 k. So if you find out the dot product, then what we have? Del v1 by del x plus del v2 by del y plus del v3 by del z. Everybody got it? ये मिलेगा कि नहीं? Yes, sir. है ना? जैसे ही आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो आपको ये मिलेगा. सो इज देयर एनी आई जे के इन द आंसर? इज देयर एनी आई जे के? नो. ओके. No, sir. हाँ, क्यों ऐसा हुआ? तो जब भी आपने आई डॉट आई किया तो उसका 1 आंसर आ गया, है ना? जब भी आपने जे डॉट इंटू जे डॉट किया तो उसका 1 आंसर आ जाएगा. के डॉट इंटू के जहाँ पे आए उसका 1 आंसर आएगा. अदरवाइज विल बी ज़ीरो. दैट मीन्स आई डॉट के करेंगे तो भी ज़ीरो आएगा, आई डॉट जे करेंगे तो भी ज़ीरो आएगा. रिवर्स ऑर्डर में भी आप देख सकते हैं. मीन्स अगर डिफरेंट है तो ज़ीरो एंड सेम है तो 1. तो जो 1 वाला बच्चा वही यहाँ पे 3 क्वांटिटीज लिखा हुआ है, अदर विल बी ज़ीरो. सो यहाँ कहीं पर भी आई जे के नहीं. तो कैन वी से दैट दिस इज योर स्केलर फंक्शन? Yes, sir. ओके. सो डाइवर्जेंट का ऑलवेज आंसर क्या आता है? स्केलर आता है. और यहाँ पे हमने देखा था ग्रेडियंट का ऑलवेज आंसर किस में आएगा? Vector. वेक्टर में आएगा. सो कीप इन योर माइंड. ओके, सो ये थोड़ा ध्यान रखना. तो यहाँ पे देखो, द डाइवर्जेंस ऑफ वी बार और डाइवर्जेंस ऑफ वी बार इज अ स्केलर फंक्शन. ओके, अब इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन कहाँ पे? किसी को याद है? आपने कहीं 12th में पढ़ा मैक्सवेल इक्वेशंस या कंटिन्यूटी इक्वेशन, ऐसा कुछ कहीं पढ़ा आपने स्टूडेंट? कहीं ऐसा वर्ड आपने देखा है? मैक्सवेल इक्वेशन या फिर कंटिन्यूटी इक्वेशन हाँ. देखिए. ओके, तो उसमें अगर मैक्सवेल आपने देखा है तो मैक्सवेल में एक ये यूज़ किया था, आपको यूज़ किया था कि नहीं? डेल इंटू वी बार इज इक्वल टू 0. याद आया? और दिस इज नथिंग बट अवर कंटिन्यूटी इक्वेशन. ओके, सो यहाँ पे डेल इंटू वी बार इज इक्वल टू 0 जो बोलते हैं उसको हम कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलते हैं. और कंटिन्यूटी इक्वेशन इज द वंडरफुल एप्लीकेशन ऑफ द डाइवर्जेंस. और डाइवर्जेंस का ज्योमेट्रिक मीनिंग अगर हम सोचें तो इट इज़ वेरी गुड. ओके, यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है आपके पास, तो दिस इज योर फ्लक्स. ओके, तो यहाँ पे जितना भी यहाँ पे आपका इनफ्लो है उतना ही अगर आउटफ्लो है, तब आपका ग्रेडियंट जो है नॉट ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस जो है वो क्या रहेगा? 0 रहेगा. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट में मिल रहा है फ्लो में. ओके, तो उसका क्या होगा? वो डाइवर्जेंस ऑलवेज 0 होगा. डन स्टूडेंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. सो दीज आर द रियल लाइफ. आप जहाँ पर भी पाइप हो या फिर आप करंट की बात करते हो, कहीं पर भी आपको ऐसी सिचुएशन दिखाई दे, देन यू आर यूजिंग द डाइवर्जेंस. ओके, सो दिस इज द एप्लीकेशन. सो हमने डिस्कस किया. ओके, नेक्स्ट वेक्टर इज द कर्ल. तो जब भी वेक्टर फील्ड होता है ना, तब हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, एक डाइवर्जेंस एंड दूसरा कर्ल. ओके, सो वी बार इज इक्वल टू v1 I plus v2 j plus v3 k be a differentiable vector function. Then the curl of v bar is denoted by curl of v bar or del cross v bar, and they define as
curl of V bar is equal to del cross V bar, and del cross V bar is the cross product with वेक्टर V bar. ओके, डेल और V bar का. सो आई जे के डेल का हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, एंड V bar का है V1 V2 V3. इफ यू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट देन यू विल गेट योर कर्ल ऑफ V bar. ओके, एंड कर्ल ऑफ V bar का अगर आप यहाँ पे आंसर देखेंगे, सो इज इट वेक्टर फंक्शन और स्केलर फंक्शन? वेक्टर। वेक्टर. ओके, तो यहाँ पे थोड़ा मैं समराइज कर देता हूँ तो आपको अच्छे तरीके से पता चले. ओके, सो एवरीबडी लुक एट हियर. वी हैव दी डेल. ओके, डेल क्या होता था? सो डेल बाय डेल एक्स आई प्लस डेल बाय डेल वाई जे प्लस डेल बाय डेल जेड के. इफ यू यूज दिस डेल ऑन टू डिफरेंट वेक्टर्स, स्केलर, एक तो स्केलर पे है ना, स्केलर, एंड सेकंड है वेक्टर. So if you operate on scalar, that means del into phi. So this is nothing but your gradient of phi. Yes or no? Student. Yes, sir. And if you operate on vector, then you have two different subpart. Okay, and what is it? Del. First one is del into V bar, and second one is del cross V bar. So this gives you a divergence and this gives you a curl of V bar. Divergence of V bar. Is it okay, everybody? Now I think you all are understand about this. Understand, everybody? यस सर। ओके, सो यहाँ पे इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर स्केलर का आंसर, स्केलर वेक्टर फील्ड है, सॉरी स्केलर पॉइंट फंक्शन है, तो उसका आंसर आएगा वेक्टर में आएगा. इसका आंसर जो आएगा वो स्केलर में आएगा, एंड इसका जो आंसर आएगा वो वेक्टर में आएगा. सो कीप इन योर माइंड. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ द ऑपरेटर डेल. ओके, डेल आप कोई भी फंक्शन पे ऑपरेट करो तो आपको 3 आउटपुट्स मिलेंगे. आइदर इट विल बी द ग्रेडियंट, इट विल बी द डाइवर्जेंट, और इट विल बी द कर्ल. ओके, अब ये दोनों का दूसरा भी नेम है. ओके, इससे आपको एक सोलेनॉइडल बोला जाएगा, सोलेनॉइडल. एंड दूसरी जो क्वांटिटी न्यू डेफिनेशन है वो ई रोटेशनल, जिसका रोटेशन नहीं हो सकता है. ओके, सोलेनॉइडल मीन्स मैंने अभी आपको जैसे बोला जैसे कि उसका अगर आप ग्रेडियंट फाइंड करो, सॉरी डाइवर्जेंट फाइंड करो, नॉट ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस फाइंड करो, वो ज़ीरो हो जाता है, देन यू कैन से दैट इट इज़ द सोलेनॉइडल वेक्टर. एंड यहाँ पे अगर आप डेल क्रॉस वी बार फाइंड करते हो वो ज़ीरो हो जाता है, देन यू कैन से दैट इट इज़ द ई रोटेशनल वेक्टर. सो एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन दिस स्लाइड? एनीबडी? जो भी मैंने समझाया उसमें कोई डाउट है किसी को? इफ यू हैव डाउट देन यू कैन आस्क मी. एनी डाउट बेटा? No, sir. नो डाउट. ओके. बस एक ही को नहीं है, बाकी सबको है. तो मुझे बताओ, इफ यू वांट टू रिपीट इट देन आई एम रेडी फॉर दैट. नॉट इश्यू. No, sir. No doubt. Okay, if you have no doubt then we go for the examples. Okay, so you can see first example. V bar is equal to 3xzi plus 2xyj minus yz square k, then find divergence of V bar. अब मुझे divergence find करना है इसका, तो you have to direct operate the formula. Okay, so here V bar is equal to 3xzi plus 2xyj minus yz square k. So V1 is your component, this is your V1, this is your V2, and this is your V3. So that means V1i plus V2j plus V3k. So V1 is equal to 3xz, V2 is equal to 2xy, and V3 is equal to minus yz square. So the definition of divergence of V bar will be del V1 by del x plus del V2 by del y plus del V3 by del z. Now substitute the value of V1, V2 and V3 in the expression. So del upon del x of 3xz
plus del by del y of 2xz plus del by del z of minus yz square. So what is the partial differentiation of 3xz? क्या होगा? क्या होगा? 3z 3z. Okay, then derivative of 2xy with respect to y, 2x yes, 2x. The derivative of minus yz square with respect to z, minus 2yz. So this is your required divergence. अभी डाइवर्जेंट बोला, आप कभी कभी क्या बोल देते कि एट पॉइंट फाइंड कर दो. So for example, if go for 101, then what is your answer? 3 into 1 plus 2 into 1 minus 2 into 0. So 3 plus 2, so we have the 5. So the divergence of V bar is 5. Any doubt, anybody? Any doubts? No, sir. DJ, any doubt? Ramesh, Yes, sir. any doubt? No, sir. Okay. Okay, then we go for the next example. So next example, that if f bar is equal to xz cube I minus 2x square yz j plus 2yz raised to 4k, then find curl of f bar at point 1 minus 1 1. Means ये point पे मुझे curl find करना है, तो you have to follow the definition of curl. So यहाँ पे सबसे पहले f bar है, तो f bar का यहाँ पे ये गलत लिख दिया है ना, इसको f1 f2 f3 बोलेंगे. So this is your f1, this is your f2 and this is your f3. So say f1 is equal to xz cube, f2 is equal to minus 2x per yz and f3 is equal to 2yz raised to 4. अब v1 v2 v3 के साथ चलेंगे तो पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे डेल क्रॉस एफ बार हो जाएगा आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल जेड, ये तो कॉमन ही रहेगा दोनों. और यहाँ पे थर्ड अगर आप f है तो f1 f2 f3 बोलो, v है तो v1 v2 v3. से दिस इज योर f1, दिस इज योर f2 एंड दिस इज योर f3. So I j k del by del x del by del y del by del z, no change in the first two rows. Now change in third row. So f1 is my xz cube, f2 is my minus 2x per yz and f3 is my 2yz raised to 4. Okay. So now if you open this, चलो इसको ओपन करके बताओ मुझे क्या होगा. एवरीबडी चलो इसको ओपन करो तो आई कैप पहले आएगा, यहाँ पे डेल बाय डेल वाई ऑफ 2yz raised to 4. डायरेक्ट आंसर बताओ. चलो 2yz raised to 4 का डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू y? 2z raised to 4 वेरी गुड. ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, सेकंड का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस डेल बाय डेल z ऑफ 2x स्क्वायर yz. 2x square y वेरी गुड. माइनस जे कैप. ओके, अब डेल बाय डेल एक्स ऑफ 2yz raised to 4 तो 0 है ना, क्योंकि x है ही नहीं ना इसमें. ओके, Yes, sir. Yes, sir. minus del by del z of xz cube. So this will be 3xz square. Okay. Okay. सही है नहीं? Yes. Yes, sir. ओके, के कैप. चलो के कैप के लिए बताओ मुझे क्या होगा. तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4xyz माइनस विथ रिस्पेक्ट टू y में यहाँ y है ही नहीं, दैट मीन्स 0. सो आवर आंसर इज आई कैप 2z raised to 4 plus 2x square y minus minus plus 3xz square j cap, and here minus 4xyz k cap. Okay, now substitute the value of the points have 1 minus 1 1. So 1 minus 1 substitute. Yes, बोलो. सर इधर 4xyz थोड़ी आएगा. 4 एक मिनट. हाँ, 2 into 2 4 हो जाएगा ना.
सर थीटा करना है ना तो z कांस्टेंट मतलब x एंड y तो कांस्टेंट। नहीं नहीं, y एंड z कांस्टेंट ये फाइंड किया है मैंने, देखो ये फाइंड करना था ना मुझे, निश्चय तो सही है ना अब। यस सर। सो कॉल ऑफ f बार एट 1 माइनस 1 1, वही पॉइंट है या दूसरा है? यस 1 माइनस 1 1। चलो इसमें सब्स्टिट्यूट करके मुझे आंसर बताओ, चलो एवरीबॉडी, मैं किसी को भी पूछूंगा, हाँ सब्स्टिट्यूट करके आंसर चाहिए। रिप्लेस द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू माइनस 1 एंड z इज इक्वल टू 1। चलो बताओ। -2i प्लस 3j प्लस 4k। माइनस 2i 2i प्लस 3j प्लस 4k। plus 3j plus 4k, is it right everybody? I think it is not correct. Wrong. सर 3J प्लस 4K पाएगा। Plus 4K. हाँ. 4K। Plus 4k, yes निश्चल, this will be 0। देखो यहाँ पे, यस सर। हाँ सो यहाँ पे 2 और यहाँ पे -2, ओके दिस विल बी 0, ओके सो 0 into I plus 3j plus 4k, then it will be the 3j plus 4k, okay everybody? Yes, sir. So this is our answer, 3j plus 4k. Now I give you homework, चलो फर्स्ट एंड सेकंड एग्जाम्पल में होमवर्क में दे रहा हूँ, ओके मैं थर्ड करवाऊँगा। अगर आपको अभी करना है तो यू हैव द 7 मिनट्स, चलो यहीं पे आप कर सकते हो, अदरवाइज वी स्टॉप हियर, ओके ये मैं अभी स्टॉप करते हैं। सो इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन टुडे सेशन, एनीबॉडी? No, sir. व्हाट अबाउट अदर्स? No, sir, no doubt. ओके सो